Hello everyone, welcome to once again unit number 4, chemical bonding and molecular structure, and our current topic is the most important and critical topic of this unit is a molecular orbital theory. We know that according to wave mechanics, the atomic orbitals can be expressed by a wave function, or sometimes we denote it by psi, which represents the amplitude of the electron waves. And these are obtained from the solution of Schrodinger wave equations. But however, we know that it cannot be solved for any system containing more than one electron. So molecular orbital which are one electron wave function for molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger wave equations. So to overcome this problem, an approximate method is known as LCAO, means linear combination of atomic orbital has been adopted. So at presently we are on our last lecture's quick cap revision, right? So let us apply this method to the homonuclear diatomic hydrogen molecule. Consider the hydrogen molecule consisting of two different atoms like A and B. So each hydrogen atoms in the ground state has one electron in 1s orbital, and the atomic orbital of these atoms may be represented by the wave function sin A and sin B. Mathematically, we know that the formation of molecular orbitals may be described by the linear combination of atomic orbitals, and that can be take place by addition and by subtractions of wave functions. So we know that sin MO is nothing but it's a sin A plus minus sin B. If plus is called as a bonding molecular orbital, and if sin A minus sin B is anti-bonding molecular orbital. And qualitatively, the formation of these molecular orbitals can be understood in terms of the constructive or destructive interference of the electron waves of the combining atom. So in this formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other due to constructive interference, while in the formation of anti-bonding molecular orbital, the electron waves cancel each other due to destructive interference. In some textbook or in some reference book, they ask in phase and out of phase terminology they are used. So as a result, the electron density in a molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms, because of which the repulsion between the nuclei is very less, while in case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus. But in fact, there is a nodal plane. What the meaning of nodal plane means? The electron density is zero between the nuclei, and hence the repulsion between the nuclei is high. So electron placed in the bonding molecular orbitals tends to hold the nuclei together and stabilize a molecule. So therefore, a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbitals that have combined to form it. So this is all about the recap of our last lecture, and we also studied about the SS combination too. Today now we move to the S and P and P and P interference of the orbitals. So let us start. We know that an S orbital may contain, right, or may combine with P orbitals, provided that the lobes of P orbitals are pointing along the axis joining the nucleus. But when the overlapping lobes have same sign, so this gives a bonding molecular orbital, right? Is increase the electron density between the nucleus, or sometimes it's called as a constructive interference too. So when the overlapping lobes have opposite signs, this gives an anti-bonding molecular orbital with a reduced electron density in between the nucleus. You look about the figure. This is Px and S combination. In this p orbital, there is a plus sign. It means the probability of an electron in this area, and S, we know that it's always, because S is a sphere in nature. So there is a plus and plus combination
and definitely and it's a positive interference, so they give us such a type of shape and it's called as in sign. But this sign is bonding molecular orbital because this plus and plus sign, so it's a sigma overlap, because this overlap is called as a sigma. Why? Because the electron density is over on a nucleus, over on a bond axis, so it's called as a bonding orbital. Same way when px and s, but mind well here the minus and plus, so there is no positive interference, but sometimes it's called as a destructive interference. So as a result the electron density in a anti-bonding molecular orbital, right, so is a very less in the anti-molecular orbital. Fine. So there is a plus, minus, plus, so there is a nodal plane, and we know that the nodal plane means where the electron density is 0. But mind well, our electron density is over the bond axis, so it's sigma star overlap, and it's an anti-bonding orbital. So two different conversations, sigma overlap and sigma star overlap, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, are discussed in this session. Now next point is this is the S and P, right? Now we switch over to the P and P orbitals once again. So in case of P orbitals, there are two different kinds of overlap possible, namely end on and side on, right? End on overlapping of two px orbitals along the intermolecular axis of the molecule creates sigma and sigma star. Here the word is end on means head on, right? Head on overlapping. We know that head on overlapping always creates a sigma bond, and side overlapping always creates a pi bond. Okay. So here, but in the case of this head on overlapping, we observe that while on side overlapping of py and pz orbitals create P and sigma star molecular orbital, means pi and pi star, not here there is a mistake, but pi and pi star molecular orbitals. So the sigma bonds are cylindrically symmetrical, right? यहाँ पे जो बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सिलिंड्रिकल है. सिलिंड्रिकल यानी आप यहाँ पे एक बाउंड्री दौड़ दीजिए. पहले देखिए ये px है और ये px है, प्लस प्लस है और यस है, यानी ये वो आना ही चाहते हैं, कोई देयर इज अ पॉजिटिव इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो ये जो ओवरलैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम सिग्मा ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे. लेकिन दूसरा जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये px का, ये प्लस और माइनस है. देखिए अब यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, लेकिन ये माइनस प्लस और नेगेटिव इंटरफेरेंस होने की वजह से ये जो है वो अपना शेप कुछ इस तरह से कर पा रहे हैं. तो यानी वो दोनों के बीच में डेफिनेटली देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन नोडल प्लेन भी यहाँ पे दिख रहा है. तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर. ये दोनों जो आपको फिगर मैंने दिखाई है वो बॉन्ड एक्सिस पे ही उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो सिग्मा ही बना रहे हैं, वो पाई नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हेड ऑन कोलिजन ही हो रहा है. लेकिन हमें मालूम है कि जो px यहाँ पे है तो py यहाँ पे है और pz, यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो वो सिग्मा बनाएगा, तो बाकी का तो साइड में ही होगा, तो वो पाई की तरह चला जाएगा. तो हम पाई का किस तरह से हो रहा है देखिए, हम पाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं. सो यहाँ पे देखिए ये जो py है और यहाँ पे भी py है, ये प्लस और प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, लेकिन ये हेड ऑन नहीं है, ये साइड से कोलिजन हो रहा है, इस तरह से कोलिजन हो रहा है. देखिए यहां से आ रहे हैं, इस तरह से नहीं आ रहे हैं. तो क्या होगा, ये प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस माइनस, लेकिन ऑन एक्सिस नहीं हुआ है, राइट. ऑन एक्सिस नहीं होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस पे नोडल प्लेन की यहाँ पे रचना हो गई है. तो ये पाई ओवरलैप है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं. लेकिन वही इस तरह से भी हो सकता है ना, ये px py है सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस है. तो उसका जैसे हम साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है,
तो प्लस माइनस तो ठीक है, माइनस प्लस से ये यहां पे देखिए आप नोडल प्लेन यहां पे भी चला गया है, तो ये पाई स्टार ओवरलैपिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो मैंने अभी आपको जो p और p ऑर्बिटल में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा स्टार, फिर एक पाई, फिर एक पाई स्टार, इस तरह से pz में भी इस तरह से हो जाएगा ना, पाई एंड पाई स्टार, यानी कितनी p जो हमारे पास ऑर्बिटल होती है उसमें तीन सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, px, py और pz। सेम वे दूसरे में भी वही रीत से हम देखेंगे, यानी 3 और 3 मिला के 6 होनी चाहिए। तो 6 किस तरह से बनेगी, सिग्मा बनाएगी, फिर पाई बनाएगी, फिर पाई बनाएगी, फिर पाई स्टार बनाएगी, फिर पाई स्टार बनाएगी, फिर सिग्मा स्टार। तो ये कुछ इसका एनर्जी का स्केल है, वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? फिर से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको S और S का कॉम्बिनेशन बताया हुआ था, आज मैंने S और P का कॉम्बिनेशन बताया और P और P का कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। अब देखिए, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर समराइज्ड इन दिस टेबल। तो देखिए अब टेबल में क्या है कि आपको बॉन्डिंग में क्या है, दिस आर फॉर्म्ड बाय इन फेज। यहाँ पे कई बार अच्छा ये वर्ड्स यूज किया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ने पॉजिटिव इंटरफियरेंस ऐसा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको साइन ए और साइन बी बोलेंगे। इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देयर इज एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो रहा है अब देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि दिस आर फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ फेज, यानी उसको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहेंगे, मींस इंटरफेरेंस कहेंगे, ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो इन एन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देयर इज अ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस। यानी हम दोनों की एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बिल्कुल तरह से होती है, यानी उसका खींचाव पूरी तरह से होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कम होने की वजह से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जा रही है। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील करना है, यहाँ पे करना है, तो मैं पहले यहाँ पे फील करूंगा, बाद में मुझे एंटी बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। दूसरा आप देखिए, तो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड। मैंने अभी बोला आपको कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जुड़ाव से बनी हुई है उससे भी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज हायर देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। तीसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम रिजल्ट इन अट्रैक्शंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। और यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम रिजल्ट इन द रिपल्सन बिटवीन द, यहाँ पे अट्रैक्शन है, क्यों है, क्योंकि इन फेज ओवरलैपिंग है। यहाँ पे रिपल्सन है, क्यों है, क्योंकि आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है। उसको हम सिग्मा और सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सिग्मा स्टार सिग्मा पाई स्टार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसकी थोड़ी कंडीशंस भी हम देख लेते हैं कि कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या दिया हुआ है। We know that in deciding which atomic orbitals may be combined to form a molecular orbitals, there are 3 rules must be considered. हमें 3 रूल देखने चाहिए। कौन कौन से? The atomic orbitals must be roughly of the same energy. Same energy की होनी चाहिए। This is important when considering overlap between 2 different types of atom. ये दोनों different types से हो रहे। The orbital must overlap one another as much as possible. So this implies that the atoms must be close enough for effective overlap, and that the radius distribution function of the 2 atoms must be similar at this distance. आपको समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल से वो जो जुड़ना चाहती है तो वो नजदीक के डिफरेंस वाली होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था 1s और 3s का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। हम 1s बिल्कुल लगा सकते हैं, या 1s 2s भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 1s 3s नहीं लगा सकते, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग ओवरलैप बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। दूसरा, द ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप वन अनदर एज मच एज पॉसिबल।
कितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा. सो दिस इंप्लाइज दैट द एटम मस्ट बी क्लोज इनफ फॉर इफेक्टिव ओवरलैप, यानी पूरा इफेक्टिव ओवरलैप होना चाहिए. सो द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ दिस टू एटम मस्ट बी सिमिलर एट दिस डिस्टेंस. तीसरा है, in order to produce bonding and anti-bonding molecular orbitals, either the symmetry of two atomic orbital must remain unchanged when rotated about the internuclear line. ये जो इंटरन्यूक्लियर लाइन होती है, यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बोला था, तो वहां पे उसका जो दोनों की सिमेट्री है वो अनचेंज होनी चाहिए. बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट चेंज सिमेट्री इन एन आइडेंटिकल मैनर. तो वो दोनों का इस तरह से एक ही देखिए, एक का चौड़ा हो जाएगा, एक का पतला हो जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है. समझ में आ गया? इतना आपकी बुक में नहीं समझाया हुआ है, फिर भी हम अपनी एनसीईआरटी की बुक का तो आप होमवर्क कर ही रहे हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डेप्थ लेने की वजह से ही मैंने कई बार आपको बोला है कि हम ये रेफरेंस बुक को हम यूज यहाँ पे दिखा रहे हैं. यहाँ पे अलग एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ, अभी आपको जो समझाया ना उसका पूरा कंक्लूजन यहाँ पे निकाला हुआ है कि टाइप्स ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती है. So the types of the molecular orbitals, so molecular orbitals formed from the linear combination हमने देखा, S और S का जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है और बीच में पॉजिटिव इंटरफेरेंस है या इन फेज ओवरलैपिंग है, तो हमें डेफिनेटली सिग्मा ही मिलेगा. और क्योंकि S और S सिग्मा ही बनाएंगे, और ये जो है लेकिन उसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग नहीं है. यहाँ पे देखिए नेगेटिव मीन्स यहाँ पे हो गया है, इंटरफेरेंस हो गया है, या हम दूसरी तरह से बोलेंगे आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है, तो वो सिग्मा स्टार को दिखाएगा. तो ये सिग्मा स्टार. फिर 2s वाले सेम सिग्मा 2s वाले लेकिन माइनस है तो सिग्मा स्टार 2s. या जो स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है. फिर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने अभी आपको दिया 2px और 2px दोनों जुड़ रहे हैं, तो वो पहले सिग्मा 2px बनाएंगे और उसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा स्टार 2px का होगा. समझ में आ रहा है आप? फिर यहाँ पे आप देखिए 2py और 2py का यहाँ भी दिखाया हुआ है, तो उसका क्या हो गया, पाई 2py हो गया. फिर 2py का माइनस है, यानी इसका बॉन्डिंग है, इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो पाई स्टार का होगा, क्योंकि पहले तो सिग्मा बनाएगा बाद में वो पाई की तरफ चला जाएगा. ये 2pz का भी पाई 2pz है और 2pz का पाई 2pz है. सो हमने फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, S का बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा वो डेफिनेटली सिग्मा की तरह चला जाएगा. फिर मैंने S और P का लेकिन दिखाया था, फिर मैंने P और P का, तो P और P का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो मैंने कुछ इस तरह से समझाया है कि P और P के बीच में एक सिग्मा होगा, 2 पाई हो गए, एक सिग्मा स्टार होगा और 2 पाई स्टार हो जाएंगे. तो इस तरह से हमें कुछ देखना पड़ेगा. आपको समझ में आ गया? फिर से हम यहाँ पे एक थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट, अभी ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना वो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया है. देखिए थियोरेटिकल पोर्शन मेरा अभी नहीं है, अभी हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि एनर्जी लेवल्स हम अभी देखना चाहेंगे. यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अभी देखिए ये जो तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद द डायग्राम्स अभी मुझे दिखाना पड़ेगा. वी शोइंग द रिलेटिव एनर्जी लेवल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, तो वो कुछ किस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब देखिए मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से मैं दिखा सकता हूं. देखिए the orbitals of the individual combining atoms are written on either side of the diagram as horizontal line as heights denoting their relative energies. मैं अभी दिखाता रहा हूं आपको. The electron in each atomic orbitals are represented by arrows. यहाँ पे दिखाऊंगा. The molecular orbitals of the molecule are represented in the middle of the diagram and dashed line connect the parent atomic orbital with the molecular orbital. किस तरह से ये डायग्राम है ना, मैं पहले आपको यहाँ पे मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे डायग्राम बन रहा है. फिर से मैं यहाँ पे वापिस आ जाऊंगा. देखिए ये जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए क्या बोला था. फिर से मैं आपको समझा रहा हूं. दिस डायग्राम shows or showing
the relative energy level of the combining atomic orbitals. The molecular orbitals formed from them and the order of filling of the electrons is called the molecular. देखिए ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ने की वजह से बीच में जो दिखाया गया है वो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स है. So the orbitals of the individual combining atoms are written on either side of the diagram as a horizontal lines at heights denoting. अभी देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी लेवल क्या है, बढ़ रहा है. समझ में आ गया? फिर से आपको क्लियर. द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस. तो मुझे एरोस की तरह से लिखना पड़ेगा. So the molecular orbitals of the molecule are represented in the middle of the diagram and dashed line connect the parent atomic orbital with the molecular orbital. तो आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2s और 2s का कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है. तो मैंने आपको बताया सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s है. अभी नीचे इस तरह से 1s और 1s का भी इस तरह से होगा ना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s. यहाँ पे देखिए मैं क्या समझा रहा हूं. क्लियर. अब दो यहाँ पे डायग्राम है. किस तरह से डायग्राम है मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए बहुत अच्छी तरह से आप समझना पड़ेगा. ये 2px 2py और 2pz है. सेम वे 2px 2py और 2pz है. क्लियर. तो ये जो है पहले सिग्मा में चला जाएगा, फिर दोनों पाई का, फिर ये पाई स्टार का है और ये सिग्मा स्टार का है. ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये जो ऑर्डर है वो O2 से Ne2 का यानी 16 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्केल यहाँ पे चल रहा है. समझ में आ गया आपको? लेकिन 15 तक क्या होता है? 15 तक ये होता है. ये 1s का तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा डायग्राम है. यहाँ पे देखिए 1s और 1s, 2s और 2s. यहाँ पे क्या हुआ है, पाई नीचे चला गया है, सिग्मा ऊपर है. यहाँ पे कोई नहीं है लेकिन पाई नीचे है और सिग्मा ऊपर है. यहाँ पे सिग्मा नीचे है. अभी कई बच्चे को इस तरह से क्वेश्चन होता है, सर जी इसमें क्यों पाई पहले तो सिग्मा होना चाहिए, पाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीनिंग इफेक्ट चल रही है. क्योंकि सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 1s में भी है, 2s में भी है, यानी बीच में बहुत इलेक्ट्रॉन होने और इफेक्टिव न्यूक्लियस जब भी बढ़ा हुआ नहीं है तो वो पहले स्क्रीनिंग, यहाँ पे स्क्रीन लग रही है. तो नया इलेक्ट्रॉन पाई में आएगा, बावजूद सिग्मा 2pz में जाना चाहिए. लेकिन सिग्मा 2pz में क्या है कि सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे उसको मिल रही है. लेकिन जैसे जैसे मैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाऊंगा तो ये स्केल इस तरह से हो जाएगा. जैसे मैंने आपको बोला कि शील्डिंग इफेक्ट 15 इलेक्ट्रॉन से मैं जैसे अपर पोजीशन में जा रहा हूं, जैसा 16 आता है तो सिंपली ये चेंज हो जाएगा. आपको ये दोनों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. मैं आपको फिर से समझा रहा हूं. समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको यहां पे दिखा रहा हूं. द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ मोलेक्युलर ऑर्बिटल, ठीक है, हैज बीन डिटरमिन मेनली फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा. ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से मिला हुआ है. जैसे मैंने सिंपल होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मोलेक्यूल्स होते हैं, सिंपल मैंने आपको समझाया. तो पहले कहाँ चला जाएगा, सिग्मा 1s में, बाद में सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py. ये देखिए ये पाई और पाई दोनों इक्वल एनर्जी वाले हैं. तो इसमें होर्न्स रूल्स से मुझे जाना पड़ेगा. देन पाई स्टार की तरह से मुझे जाना पड़ेगा और फिर सिग्मा स्टार 2pz. लेकिन अब देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो 2px है ऑर्बिटल्स, राइट, 2px ऑर्बिटल्स, वो पाई और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा. 2py भी पाई और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ही बनाएगा. सो ये पाई 2px एंड पाई 2py MO हैव एक्जेक्टली द सेम एनर्जी, आर सेड टू बी doubly degenerate. Okay, in similar way the anti bonding pi star 2px and pi star 2py भी सेम एनर्जी की है और doubly degenerate होती है. So the arrangement, the simple arrangement of molecular orbitals sigma 3s से sigma star 3pz, पर एनर्जी क्या होती है उसमें थोड़ा कम और ज्यादा होने की वजह है. लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने आपको ये जो डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो देखिए, फिर से मैं आपको ये डायग्राम दूसरी बार में यहाँ पे समझाऊंगा. फिर से मैं नए लेक्चर में तो समझाऊंगा. ये क्या है, SS, तो इसकी 2 हो गई. यहाँ पे देखिए
इस तरह से, लेकिन यहाँ पे पहले सिग्मा 2pz में है, फिर सिग्मा पाई 2px है, पाई 2py है, फिर पाई स्टार का है और सिग्मा स्टार का है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो बॉन्डिंग का है, ये तीनों बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ है कि 15 इलेक्ट्रॉन तक पहले पाई में चला जाएगा, बाद में सिग्मा, लेकिन 16 से यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज आ गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इन सेकंड पीरियड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है, O2 है वो थ्रू O2 से Ne2 तक का है, और यहाँ पे जो दिखाया गया है ये Li2 से N2 का है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया।